I think we'll just wait. People are joining. Okay. Good evening, everyone. I welcome you all to today's webinar. So, I'm CA Ramya. I'm the convener of today's webinar. So, unfortunately, CA Tanya is unwell today. So, I'll be the convener. Yeah. So, we'll just start in a minute or so. There are many people joining us. And first of all, I hope everyone is safe and healthy. Their family, friends are safe and healthy. So it's very, very important for us today to maintain our health. So I hope everyone is staying at home, not going out unnecessarily. And and most important is that we have to all stay mentally positive, about all the negativity that is going on. We have to stay positive and survive this tough time together. And I hope, events like these, webinars like this are actually a distraction for us from the negativity. And so let's stay positive, let's enjoy, let's learn a lot in this webinar. Good evening. So there are a lot of people joining us. Leela Krishnan sir, good evening. Arun Shah sir, good evening. Okay, so to begin with, I have to introduce our guest of honor, CA Praveen Sharma. So if I have to tell about him, he's a chartered accountant, he's an LLB, he's a diploma in IFRS from ACCA UK. He is a practicing chartered accountant who's been practicing for more than 8 years in the fields of GST, corporate taxation, international taxation, and corporate and commercial laws. He has also experience in carrying out diagnostic review of business operations, structuring of business model, and even litigation support for all his clients. And he has been awarded the KV Chandramouli Memorial Prize from ICI2. And he's a trainer in Master's Trainer Program of GSTN. And he's also a member of the eminent faculties of our Indirect Tax Committee in ICI. So very, very glad to have you with us, sir. Welcome. So, for any opening remarks. Thank you so much. Thank you very much for this given me an opportunity to come over here in the OptoTax, which is the #1 software right now in the relation to the GST, trusted by more than 50,000 tax professional, and I think more than 1 million clients is there in the OptoTax platform. So basically, right now, I hope everyone is safe at your home and taking medical precautions and everything precautions at your end, and hope so it will come end soon, this pandemic, and situation will be normalized in coming days. Hope so everything will be normalized. And thank you OptoTax for giving me another opportunity to be over here as a guest, guest, and also Vikas sir, a very learned speaker over here, who will be discussing about the GST transaction that will impact the financial statement relation to the year ending 31st March 2021, and the recent notification in the GST, which is altogether, I can say, the GST small MOC scheme in relation to the March and April GST return data. Regarding the OptoTax, which is altogether making your GST compliances in a simple way. It has a very simple software having no installation facility. Anytime you can access, anytime, anywhere. It's a very multiple user you can work over here. GST news alert they will provide also, and simple and very easy to use features. QRMP scheme is also being available at the OptoTax, which you can refer, and you can also in relation for the payment of the taxes in relation to the QRMP scheme. You can also view in cash ledger. It's a very simple and easy way to. It's very easy for doing your GST transaction, and reconciliation reports is very useful. So over to the OptoTax team to continue our webinar, so that every learned participant over here to get knowledge about new GST notifications and circulars. Thank you. Over to you. Yeah, thank you so much for the sweet words.
So now I'd like to introduce our speaker for the day, CA Vikas Golcha. So he's a chartered accountant, he's a company secretary and DISA. He's been practicing for more than 8 years and he's a currently partner in SC Mahandru and Co Chartered Accountants. He specializes in the field of indirect taxation. He also handles litigation at the High Court of Chhattisgarh and CESTAT level. And he's an empaneled national faculty of GST in ICI and also an empaneled expert faculty at NACIN, that is National Academy of Indirect Tax and Customs, which Ministry of Finance, where he trains GST officers. He's also visiting faculty in the Chhattisgarh State GST department. So he's addressed more than 300 seminars and webinars on GST and trained more than 20,000 participants across India. And he's also founder of the cloud-based GST academic database called gstsamadhan.com, which is subscribed and appreciated by a lot of tax practitioners and GST officials across India. And he has also authored 3 books in GST on e-way bill, TDS, and on GST basics. So I'm really happy and proud to have such a talented profession among us. So thank you, sir, so much for joining us today. Thank you, ma'am, for the opportunity, and warm welcome to Praveen ji also. We will be needing all your support, Praveen ji, throughout the session. So you can go ahead with your presentation. Warm welcome to all the participants, because hope you all are safe at your home, and we are here to unlock the learning during this lockdown in the course of GST. So we will be having a discussion today on the GST transaction impacting financial statement for the financial year 2021, and also we will be discussing the recent notifications in the form of COVID relief granted by government for the taxpayers. What are the implications of this is, how it will benefit the clients, and how it will operate. We will discuss in detail. So first of all, we are at the end of the financial year. Already we have financial year closed, and we will be very soon. We will be going through a income tax audit. So before that, it is an opportunity so that we can reconcile and review all the documents, financial statements, and all the transactions during the financial year, so that we can timely correct and correct the liability and discharge at the earliest to avoid any interest cost that may come later part. So we will be discussing every transaction. Let's go ahead. So I hope all are listening very well. All are getting my voice comfortably. I request all the participants, if in between any question, you can message in the chat box. We will be having a 40 minutes deliberation. Thereafter, we will be having open session where Praveen ji and me will be answering your queries. We will try to answer the best of our knowledge. So your queries are made by you, and we will try to resolve all your queries at timely. Okay, let's start our session. So the topic is GST transaction impacting financial statement. When I have thought which topic we will have to take, I will be mixing in Hindi and English for considering our audience base across India. So हमारे जो ट्रांजेक्शन्स है, हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्डिंग है, और उसको किस तरीके से हमको ट्रीट करना है. Because considering there is a difference between an income tax act, which is run on accrual basis of concept, and there is a GST act, which is had its own set of rules. So there are differences. That's why they have a GST 9C reconciliation statement. Now everyone is aware that GST 9C has done away with. So we will be very cautious and careful because our businessmen have to self-certify that statement reconciliation. So to timely rectify, we have we along with Octotech and the GST Mitra Praveen ji, GST Samadhan, I tried to have an event on how we can timely correct the transactions on GST, which will be impacting financial 2021. So let's start with the outward supply part. We will be having a 3-part: outward supply, inward supply, other areas. Let's start with the outward supply part first. First of all, outward supply, I can say there are 3 or 4 reconciliation we have to do. Reconciliation of turnovers per books, GSTR 3B and GSTR 1. So we will be having a data of GSTR as our financial statements are closed 31st March. We have to reconcile what are the transactions which are mismatched between GSTR 3B, 1 or books
and we have to on the basis of that we can have to reconcile them and identify differences and rectify them timely. After that, we will have to review with the 26 years of the income tax act. Most of the persons who are receiving income or sales, receiving contracts income and various other income, maybe have a TDS deducted under Income Tax Act, and it will be reflected in 26 years of Income Tax Act. So we have to go through the 26 years form where we can reconcile all our transaction, whether any transaction is missing or any other new transaction is there which we have missed, so that we can timely correct in our financial statement. Or if there is any wrong transaction is there, we can communicate with the concerned party who filed that and ask him to rectify the TDS returns. So 26 years on the basis of experience we have for the financial year 17, 18, 18, 19, where department audit is also started. 26 years is a very critical form. So we have to go through in detail. Even in service stress scenario, you will be facing that 26 years mismatch between 26 years and the service returns there. So we have to be accurate with the 26 years and the books of accounts reconciliation and sort out all the mismatch which is arising there. After that, one important aspect also I want to cover, the reconcile turnover GST TDS data. All the persons who are supplying goods or services to a government department under a contract having a value exceeding 2.5 lakhs, their GST TDS is deductible, and government must be deducting their TDS on monthly basis and uploading on the portal. So on the basis of all that GST TDS deducted by the government and the turnover declared by the government in their portal, according to payment made by them, so we have to reconcile that payment with our books of account, whether they are part of our outward supply or not, or is there any mismatch between them, and what is the reason for any mismatch. I can say some mismatch which can be there. Say example, for you have got a payment of 1 crore from the government department. Ideally, it is 1 crore is inclusive of GST, and you will be showing the GST amount separately and the TDS taxable value as an outward supply, that is taxable value. So there will be a mismatch that in the portal they have maybe have mentioned the 1 crore as supply, and 1%, 2% TDS has been deducted on there. But ideally, it should be should have a TDS deducted on taxable value portion. But there's a mismatch. So you have to identify all the mismatches and note down all the differences arising out of it. And if convenient, you can also inform or communicate with the concerned departments who are making payment to you about the discrepancies. So what are the taxable turnover as per you on which TDS has to be deducted and what they have done. So if timely communicated, it can be reconciled so that it will not affect in your income tax audit, which will be coming in 3 to 4 months ahead. Now, moving forward, fourth thing we have to reconcile for the outward supplies, reconciliation turnover with GST invoices issued. List out all the invoices you have issued, all the debit note and credit note. Be careful with the debit note or credit note. Any goods आपने कुछ return किया है, आपको आपने जो भी आपने sales किया था, उसके against में कोई debit note raise किया या credit note raise किया, which will be having impact on your turnover. So be careful with all the GST invoices documentation on your record. Correlate it with the financial transaction recorded in 1, 3P and books of account. And if there is any discrepancy, list out what are the solutions for that discrepancy and timely reconcile so that in the later part, you are not subject to an interest or any qualification by the auditor in the income tax audit report. So this is the basic reconciliation for outward supply you have to do. Now moving forward, now we're going through our specific transactions. First, advance received against services and specifically mentioned not goods. Let me just say why I have mentioned. If you have received any amount in the form of advance against the provision of services, it is subject to GST in the period in which advance has been received. So you have to review your entity's bank statements for receipt against which no invoice is raised, and same is advance against supply of services. Now, why this is why we have to reconcile this? Why I have to review this? Because as per time of supply provision, section 12 of CGST Act, which says GST will be payable on advance also. So, say for example, you have advance received in February 2021,
but you haven't raised the invoice because you have not supplied any services yet, or under the process, your services supply or services is under process, and you will be raising invoice say May, June, July, or thereupon. So you have to discharge your GST liability for the period of February 2021 only. Now, so according to the time of supply provision, you have to pay your GST liability in the period in which advance received. Why I am not ignoring goods here? Because there is a notification which has been relaxed for the goods. That is notification 66 oblique 2017 central tax dated 15/11/2017, which says the case of goods, the date of invoice will be the liability will arise only on the period in which invoice has been issued according to rules made thereunder. So they have explicitly done away with the goods advance and said that in the case of goods, advance receipt is not subject to GST, and GST liability will arise only and only when the invoice has been raised for the goods. So for traders and manufacturers who supply the goods, if they receive any advance, they are not subject to any GST at the time of receipt of advance. They will be liable to GST only the period in which they have issued the invoice as per rules of invoicing rules. Thereafter, discharging, if you identify any areas where we find that advances are received and we are not discharged GST liability in the period in which it is received, so I suggest that you take a timely action. Say, for example, we will be filing our April 2021 return in the by 20th of a date extended that notification we will review the date due date which will be coming in this month. So we will be discharging our liability. So we can add this liability of that period of advance if identified and add in our outward supply and discharge the due liability along with interest. Because if you delay it for further period for the audit up to audit, say if for income tax audit, if the auditor identifies same, you will be liable for interest from for next 3 to 4 months also. So it will be harsh on it. 18% interest will be a huge amount therefrom. So I request you go through your bank statements, identify any advances against which you have not issued invoices. It will be applicable only for services. I have made very clear, not the goods. So, and next part, how we will record in financial statement. So, recording financial statement as a current assets as GST paid in advance. So, we will be paying GST on advance because as per GST Act, it is not liability as such. So, we will have to show it as a current asset for the financial year ending 31st March 2021. So this is all about the transactions that is advance received against services. We have to discharge GST liability, record in financial statement, so also giving effect of that transaction in the subsequent period and discharge the GST liability. Now moving forward, income accrued as per IT, that is income tax, but not considered in GST. So as we know that there's a reconciliation statement which is applicable for financial year 17, 18, 18, 19, that is GSTR 9C, that is audit certified by the auditor, GST auditor. Now that government is done away with the GST audit, but it will have a serious implication for the business to reconcile themselves timely, because if department there is no provision for compulsory audit by chartered accountant under GST now, if the department audit under section 65 of the where department can audit, and if they come with any liability of the SSC, they will be you will be liable for interest also from the date they have the date of transaction till the date of where you are discharging that liability. So we have to identify income accrued as per income tax but not liable to GST in the period in which it is accrued, considering the time of supply provision. तो ये यहाँ पर ये उस इनकम की हम बात कर रहे हैं जो इनकम टैक्स प्रोविजन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और जो भी इनकम जो एक्रू होती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेता है एज अ इनकम, लेकिन हमारा जो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है आउटवर्ड सप्लाई जो डिराइव होता है वो टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन के हिसाब से होता है. तो जो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल रेंटल इनकम इज देयर, 31 मार्च को जो हमारी रेंटल इनकम ड्यू हुई है हम उसको अपने इनकम में शो कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, considering the accrual basis of concept under Income Tax Act. Now, but we can raise the invoice after 30 days. तो 30 days के बाद भी हम उसको invoice raise कर सकते हैं thereafter. So we have issued the invoice in the period of April 2021.
So in this case, your turnover as per income tax will be recorded in March only, but outward supply as per GST will be recorded in April. So we have to prepare a reconciliation statement to list out all these transactions which are spread over 2 years considering a different act, Income Tax Act and GST Act. तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखते हुए तो प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें. कभी भी आपका डिपार्टमेंटल ऑडिट हो या स्क्रूटनी हो तो आप डिफरेंशिएट कर पाए कि विद व्हेन यू हैव डिस्चार्ज द लायबिलिटी and what are the reason, specific reason for that delay discharge of liability. तो डिस्चार्ज जैसे अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आप आइडेंटिफाई करते हैं तो जीएसटी लायबिलिटी सब्सिक्वेंट पीरियड में आप डिस्चार्ज करें एज पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस. तो ये इस टाइप के इनकम के एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल रेंटल इनकम, प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड. फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दी है अपने क्लाइंट को मार्च में और उसकी बिलिंग जो कि मैं सर्विसेज रेंडर करने के 1 महीने के बाद भी कर सकता हूँ तो आई हैव बिल्ड इन अप्रैल और सेम मई. तो आफ्टर 30 डेज के बाद मैंने उसको 30 डेज के बाद कंप्लीट करने के बाद 30 डेज के बाद इनवॉइस रेज किया तो एज पर जीएसटी प्रोविजन लायबिलिटी विल बी देयर ऑन इनवॉइस और एडवांस रिसीव विच इज अर्लियर बट नॉट एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट. But as per financial statement, 31st March, I have to record as income in my financial statement considering the accrual basis of concept. So यहाँ पर हमको इस टाइप की इनकम को आइडेंटिफाई करना है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है. आगे. Now moving forward, the input tax credit part. We have done away with the outward supply. We will be discussing a few more transactions for outward supply also. Wait a minute. Few other examples of outward supply I can say that is sale of fixed assets. Say we generally miss those transaction in due course of the business. So apart from that, we can also have any sale of asset which is outward supply. So any asset in the name of entity or the name of PAN number in which GST number has been taken has been sold during the year on which ITC has been availed. So we have to discharge the GST liability on all that also. So we have to be careful and go through the all our fixed asset statement. What are the assets sold during the year where the ITC has been availed and considering the provisions of the reversal of ITC on fixed assets sold, we have to discharge the GST liability as per the rules mentioned under section 43 is there. So we have to be careful that कि जो भी हम GST assets sold करते हैं जनरली हम क्या करते हैं इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन पे जो नॉर्मल हमारा बिजनेस एक्टिविटी है उसमें ही फोकस करते हैं. लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई ऐसे रिसिप्ट्स भी हैं ऐसे जो फिक्स एसेट्स की सेल्स के हैं अगेंस्ट में हुए हैं तो उनको भी हम टाइमली अकाउंट फॉर करें और उसकी लायबिलिटी अगर हमने मार्च तक की अभी नहीं डिस्चार्ज करी है तो आगे अप्रैल के रिटर्न्स में उसको डिस्चार्ज कर दें विद इंटरेस्ट लायबिलिटी देयर ऑन. तो कि अगर ये डिपार्टमेंट बाद में या फिर टैक्स इनकम टैक्स ऑडिट के टाइम में आएगा तो आपको 3 से 4 महीने का अतिरिक्त ब्याज भी लग सकता है जो 18% की दर से है जो एक हैवी कॉस्ट आपके बिजनेस के लिए हो जाएगा. So these are the all outward supply part. Apart from that, any other commercial income which comes under the purview of GST, if maybe not a part of your business income. For example, एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आपकी कोई इनकम हो डे टू डे बिजनेस आपने फुटवेयर का बिजनेस है आप उसकी इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं जीएसटी लायबिलिटी पे कर रहे हैं बट in your PAN you are also having one income. For example, कि आपने कोई अपनी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर आपने ऊपर की जो स्पेस है वो रेंटल दे दी किसी कंपनी मोबाइल टावर के लिए एंड यू आर अर्निंग अ कॉमर्शियल इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कॉमर्शियल पर्पस. सो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी बिकॉज आप पैन नंबर बेसिस में जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो उसमें जो भी कॉमर्शियल टैक्सेबल इनकम होती है जीएसटी वी हैव टू डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी ऑन सेम. So we have to identify all other income also under same PAN number which is subject to GST considering the provision of GST and discharge GST liability in April return that we can avoid interest cost which can be liable later on. So this is all basically about the outward supply part what we have to look after. Now moving forward the inward supply part. अब मेजर जो चैलेंजेस जो इनवर्ड सप्लाई में आते हैं तो पहला चैलेंज है इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड. अब किसी आईटीसी को मैंने गलती से अप्रैल से लेके मार्च तक के रिटर्न्स में अवेल्ड कर लिया वो आईटीसी या तो ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 या उसको मेरे को आईटीसी का जो 36(4) का रूल है जहां ये बोलता है कि जीएसटीआर 2B में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस 20% और 10% और 5% तो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको आईटीसी अवेल करना है. उससे ज्यादा मैंने आईटीसी ले लिया
तो उस सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर आपको 42 43 के जो रूल्स है जहां पर हम पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज पार्टली फॉर अदर पर्पज यूज करते हैं कोई गुड्स को, इनपुट सर्विसेज को, इनपुट और इनपुट सर्विसेज कवर 42 में होती है और कैपिटल गुड्स 43 में कवर होता है। तो उनका जो रिवर्सल करना है हमने नहीं किया, तो ऐसे केसेस को हम आइडेंटिफाई करें और उसको अभी आने वाले जो नेक्स्ट मंथ आप जो रिटर्न फाइल करने हैं आगे हैं उस पर रिवर्स करें विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, वो एज इट इज बैलेंस आईटीसी लेजर में है, तो उस केसेस में मैं सजेस्ट करूंगा कि यू डोंट हैव टू डिस्चार्ज विद इंटरेस्ट, just reverse the ITC from your ITC credit ledger only. So identify ITC, reverse them in upcoming return and prepare a reconciliation for same. So because in GST annual return we can disclose that अगले साल हमने इन ITC को रिवर्स किया था जो हमने wrongly availed किया था, तो हम वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो ठीक कर सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शंस को आप आइडेंटिफाई करके रिवर्स कर दें। अगर इसका यूटिलाइजेशन आपने किया तो along with interest you have to reverse. Record in financial statement on March as a current liability, because you have to reverse, you have to discharge in liability, so it is a cover current liability as per financial statement. तो ऐसी कोई जो liability अराइज होती है आप 31 मार्च की डेट में एज अ करंट liability इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं, ताकि इसकी liability आप डिस्चार्ज करेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जब वो रिटर्न्स आप फाइल करेंगे। तो दिस इज बेसिकली ITC wrongly availed in the books of accounts. Now moving forward, hope you are getting my points. I request all the participants, if there are any question, you can message in the chat box. We will be answering your question after the session. Now moving forward, check ITC eligibility under section 16. Section 16 of CGST Act dealing with eligibility. What are the conditions on the basis of which your ITC is eligible? There's lots of conditions in the section 16 and rule 36 also. So we have to go through all the conditions which has been prescribed for eligibility of ITC. If any condition is missing, we have to reverse the ITC, or how we can rectify their provision is also there. For example, ITC not covered the eligibility criteria, we have to receive एक point है वहां पर proviso है कि proviso 16 subsection 2 clause D में एक proviso है कि regarding payment to vendor within 180 days from the date of invoice. तो जिस दिन आप फॉर एग्जांपल कोई गुड्स परचेज करते हैं और 180 दिन इनवॉइस से 180 दिन के अंदर का पेमेंट नहीं करते, तो एज पर दिस प्रोविजो यू हैव टू रिवर्स योर ITC। तो आपने अवेल किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एज अ आउटवर्ड सप्लाई, अपने आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी में ऐड करना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्रेडिटर्स इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप जो क्रेडिटर्स हैं वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिव्यू करें, वहां पर देखें कि ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटी क्रेडिटर्स हैं जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उनकी लायबिलिटी को रिवर्स करें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। उसके बाद जब उनको आप पेमेंट करते हैं उस पीरियड में उस ITC को वापस ले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई केसेस हैं तो यू डिस्चार्ज योर दैट पेमेंट विद इन अप्रैल टू सितंबर, सो दैट यू कैन टाइमली अवेल दैट ITC आल्सो। बिकॉज ITC अवेलमेंट में 16(4) का एक जो रूल है, जहाँ ये बोलता है कि जहाँ आप इस साल का ITC इस साल प्लस अगले 6 महीने तक ले सकते हैं। So I request identify all that cases, reverse ITC, discharge payment of that concerned person, and re-avail the ITC as per the provision before September 2021 return. So this is the check ITC A16 का जो compliance है उसको आपको चेक करना है, और उसके हिसाब से जो भी ITC की आपकी liability बनती है रिवर्सल की डिस्चार्ज करना है, और रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ करंट लायबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर 6 महीने से पुराना क्रेडिटर है, एक करंट लायबिलिटी मेरी अराइज हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मैं उसको करंट लायबिलिटी के रूप में रिफ्लेक्ट करूं और उसको डिस्चार्ज करूं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल अप्रैल के रिटर्न में जब हम मई में फाइल करेंगे। सो कंसीडरिंग दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इन दिस सेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड पोर्शन। अब एक तो हो गया हमने कि एक ITC एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, रॉन्गली अवेल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड, मतलब कोई एलिजिबल क्रेडिट था वो मैंने अवेल नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस केसेस। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल हेल्प? सो रिकंसाइल ITC विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, GSTR 2A, टैक्स इनवॉइसेस ऑफ इनवर्ड सप्लाई। तो जो टैक्स इनवॉइसेस आपके पास रिकॉर्ड्स में उनसे क्रॉस चेक कीजिए। डेबिट नोट फ्रॉम सप्लायर, और यू कैन कॉल कहते हैं लेजर ऑफ दैट पार्टी। सब जो जितने भी आपके वेंडर्स हैं या फिर जिससे आप माल परचेस करते हैं, उन सब के आप उनके पार्टी लेजर आप मंगवा लीजिए, उससे रिकंसाइल कीजिए कि आपने ITC प्रॉपर लिया है कि नहीं। उस केसेस में अगर आपको ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ 2A, फॉर एग्जांपल
आप देखेंगे ऐसे केसेस है बैंक के केस में, बैंक से बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारे फीस आपसे बैंक चार्ज करता है, जिसमें जीएसटी की लायबिलिटी आती है। नंबर अपडेट किया होगा तो आप इनपुट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन जनरली तो कि हमको इनवॉइस नहीं मिलती और डे टू डे हम उसको चेक नहीं करते, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में आप 2A में ये लायबिलिटी, आप 2A में वो दिखेगा कि आप बैंक ने आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आपको उसके एलिजिबल थे, लेकिन आपने नहीं लिया। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर आपका इनवॉइस है, आपने आईटीसी नहीं लिया, 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्टी की क्रेडिट लेटर से कंफर्मेशन है और आपने आईटीसी नहीं लिया। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके लिस्ट आउट कीजिए और उन आईटीसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड कीजिए, और आने वाले जो रिटर्न है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, उस रिटर्न्स में भी जैसे आपको आइडेंटिफाई होते हैं उस पीरियड में इमीडिएटली ले लीजिए, उसका आईटीसी अवेलेबल ले लीजिए। ऑल्सो रिकॉर्ड आईटीसी नॉट अवेल्ड एज करंट एसेट इन आईटीसी रिसीवेबल, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमको आइडेंटिफाई हो गया है, तो पुट इट एज अ करंट एसेट्स। तो जितने भी परचेजेस हैं, वो इनपुट की हो, कैपिटल गुड्स की हो, इनपुट सर्विसेज की हो, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है अभी, तो बुक एज अ करंट एसेट और आईटीसी रिसीवेबल के रूप में उसको दिखाए, ताकि हम आगे के पीरियड में उसको आईटीसी अवेल भी कर पाए। क्योंकि हमको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का आईटीसी हम सितंबर 2021 के रिटर्न तक के ले सकते हैं, दैट इज नॉर्मली 20 अक्टूबर 2021, और जो ड्यू डेट चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको ये ध्यान रखते हुए ऐसे क्रेडिट जो आपने मिस कर दिया है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड करना है, और सिमिलरली ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी बनाना है कि इस साल का आईटीसी आपने अगले साल लिया, ताकि आप एनुअल रिटर्न को फाइल करते टाइम आपको हेल्प करेगा। साथ में उसको टाइमली अवेल्ड भी करना है, ताकि आपसे वो मिस ना हो पाए, आपका एक्सपेंडिचर ना हो। और एक और इम्पोर्टेंट, और उसके अलावा अवेल आईटीसी इन सब्सिक्वेंट रिटर्न अप टू रिटर्न सितंबर। अब एक चीज में यहाँ पर और दिमाग में आई है आपके ये प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग, कि आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई कैपिटल एसेट में हमने कोई आईटीसी हम एलिजिबल नहीं थे, हमने ले लिया, आईटीसी अलाउड नहीं था, ब्लॉक था 17(5) में, हमने ले लिया, तो ऐसे केसेस में फॉर एग्जांपल एक मोटर कार का एग्जांपल लेते हैं कि मोटर कार हमने अपने बिजनेस के नाम से परचेज किया, अपना जीएसटी नंबर दिया, और गलती से तो कि हम बिजनेसमैन को अवेयर नहीं था, तो उसने आईटीसी इसका ले लिया। तो उस केसेस में जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि 17(5) के हिसाब से वो अलाउड नहीं है, so for that also we can say इन केस में हम जीएसटी अमाउंट को भी कैपिटलाइज करना है। एक ही जो ब्लंडर्स मिस्टेक हुई है जब हम जीएसटी ऑडिट कर रहे थे 17, 18, 19 का, तो हम ये देखा कि आपने क्या किया, आईटीसी लेजर में ले लिया, अवेल्ड कर लिया, बाद में जब ऑडिटर क्या करता है उसको बोलता है कि ये इनएलिजिबल आईटीसी है, तो आपको डबल नुकसान होता है। एक तो आईटीसी आपको अलाउड नहीं हुआ, सेकंड जो आप उसको अगर कैपिटलाइज करते तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता, और अगर वो इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विसेज होता तो आपको एक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता, तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपसे चले गई। तो इन केसेस में आइडेंटिफाई करते हुए कि जो आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल्ड किया उसको आइडेंटिफाई करें, अगर वो एसेट है तो उसको बुक्स में जीएसटी अमाउंट को भी बुक्स में कैपिटलाइज करें, ताकि आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाए। और अगर वो एक्सपेंडिचर है, इनपुट गुड्स है या इनपुट सर्विसेज है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, आपके रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, और उसका जीएसटी इनपुट अलाउड नहीं होता, तो क्या उसको आप वहां पर एक्सपेंडिचर के रूप में एड ऑन कर दे जीएसटी अमाउंट को भी, और उसको एज अ एक्सपेंडिचर क्लेम करें, ताकि आपको इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट मिलता। तो ये सब अगर एक्शन आप लेंगे तो इनकम टैक्स का भी जो इनपुट आप छोड़ रहे हैं वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट दे देगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन क्वेरीज है आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आफ्टर टैक्स टीम से कि ऐसे कोई क्वेरीज है तो आप भी नोट डाउन करते रहे, ताकि एंड में हम कॉमन क्वेरीज को ले लें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब एक पॉइंट आता है कि ये हो गया आईटीसी नॉट अवेल। अब एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजन है, जो बहुत सारे केसेस में हम जब डिपार्टमेंट ऑडिट में जाते हैं या डिपार्टमेंट ऑडिट इनिशिएट होता है, सबसे मेजर फोकस बेसिकली सीजीएसटी डिपार्टमेंट का तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, बिकॉज दिस इज प्रोविजन ब्रिंग फ्रॉम सर्विस टैक्स एरा। तो सर्विस टैक्स में ये प्रोविजन था जहां से ये प्रोविजन लाया गया इसमें। तो सेंट्रल जीएसटी के जो अथॉरिटीज हैं, ऑफिसर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो आपका जीएसटी ऑडिट करते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस प्रोविजंस। तो जब वो डिपार्टमेंट ऑडिट इनिशिएट करते हैं तो वो रिवर्स चार्ज को प्रॉपर्ली चेक करते हैं। तो यू हैव टू चेक, गो थ्रू ऑल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंथली, और पूरा उसको रिव्यू करिए, ऑल एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू कीजिए और आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जहां पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ रही है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। इसमें एक और सेक्शन था 9 सबसेक्शन 4,
जहां पर गवर्नमेंट ने वो जो कवर का था यूआरडी परचेज, कि कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से अगर परचेज करते हैं और 9(3) के स्पेसिफिक लिस्ट में नहीं आता तो उसमें आपको लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन दैट हैज बीन डन अवे विद 13 अक्टूबर 2017। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसका अमेंडमेंट भी किया कि स्पेसिफाइड पर्सन को ही 9(4) का कंप्लायंस करना है, और दैट स्पेसिफाइड पर्सन लिस्ट नॉट कम टू yet get notified by the government. प्रवीण जी will also clarify that 9(4) की कोई ऐसी लिस्ट अभी तक गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं की है। So 9(3) is only applicable for 2021 financial year for all the SSC. So हमको जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो 9(3) के कंप्लायंस में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं उसमें करना है, उसको आइडेंटिफाई करें, लिस्ट आउट करें, उसको कंपेयर करें जीएसटीआर 3B से। तो जीएसटीआर 3B में जो 12 महीने के रिटर्न्स आपने फाइल किया है उसमें कितनी लायबिलिटी आती है और कितनी आपने 3B में या फिर डीआरसी 03 जो आप डिले करते हैं और डीआरसी 03 के थ्रू भी डिस्चार्ज कर पाते हैं, तो दोनों को रिकनसाइल करें। आपको आइडेंटिफाई होता है कि फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज में मेरी 1 लाख की लायबिलिटी आती थी और डीआरसी 03 और 3B के यूज करते हुए मैंने 70,000 ही लायबिलिटी डिस्चार्ज करी है। सो इन दैट केस इमीडिएटली आप अप्रैल के रिटर्न में उसको एड ऑन करें रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को और उसको डिस्चार्ज करें विद ड्यू इंटरेस्ट। जिस महीने वो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आती थी वहां से आप अभी तक के इंटरेस्ट के साथ उसको एड ऑन कर लें, ताकि ये इनकम टैक्स ऑडिट या डिपार्टमेंट ऑडिट के टाइम में जब आएगा तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और वहां पर इंटरेस्ट लायबिलिटी भी आपकी रेगुलरली बढ़ती जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जो लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं 3B और डीआरसी 03 से करते हैं तो उससे कंपैरिजन करते हैं आपको प्रॉपर फिगर मिल जाएगा। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो एक 18-19 के फाइनेंशियल ईयर में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे मैं शेयर करूंगा कि फॉर एग्जांपल 18-19 का जब हम ऑडिट कर रहे थे ऑलरेडी एक से 1.5 साल ऑलरेडी निकल चुका था, जहां पर वो सितंबर का जो रिटर्न था लास्ट डेट था जहां हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं वो टाइम लिमिट भी निकल गई थी। और इन दैट टाइम वी हैव आइडेंटिफाई एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3), और जब वहां पर हम कोई लायबिलिटी अराइज करते हैं तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन whether litigating matter whether ITC will be eligible or not, बिकॉज वो फाइनेंशियल की जो लास्ट आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट थी वो सितंबर 2021 की थी। दो इट इज अ लिटिगेटिंग मैटर, एनी कंपनी कैन लिटिगेट ऑन दैट इशू, बट गोइंग केयरफुली विद द प्रोविजन, स्ट्रिक्टली विद द प्रोविजन, यू कैन नॉट अवेल दैट आईटीसी। So in right now you can identify all the ITC, pay the AT or offer supply, and correspondingly also take the ITC timely. तो अप्रैल से लेके सितंबर तक के रिटर्न्स में उस आईटीसी को डिस्चार्ज करके उसका आईटीसी भी आप ले लें आरसीएम। और इसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 2021 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें आपको एक करंट लायबिलिटी के रूप में भी दिखाना पड़ेगा जैसे जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम, और एक करंट एसेट भी है क्योंकि आईटीसी आपको रिसीवेबल भी होगा क्योंकि आपने अभी आईटीसी अवेल नहीं किया है। तो दोनों वहां रिफ्लेक्ट करते हुए अप्रैल मई जैसे भी जब आइडेंटिफाई होता है उसके रिटर्न में आप उसको ले लें ताकि आपको आईटीसी भी मिल जाएगा, कोई एडिशनल बर्डन भी नहीं आएगा और जो लॉ का कंप्लायंस है वो भी आप कर देंगे। क्योंकि अगर लेटर पार्ट में आप इसका कंप्लायंस करेंगे तो इंटरेस्ट लायबिलिटी भी आपको बढ़ेगी और हो सकता है आपको आईटीसी भी अलाउड ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए 9(3) का कंप्लायंस वेरी केयरफुली यू हैव टू डू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्टो टैक्स टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब टाइम का जो भी ड्यूरेशन है आप प्लीज मेरे को कम्युनिकेट कर देंगे ताकि आई कैन प्लान और वाइंड अप अकॉर्डिंगली। Sir, you can. Sir, can you hear me? How much time? Yeah. Yeah, you can go ahead, sir. Okay, sure. Please remind me about the time if in between. Yes, sir. By when? So at 5 o'clock be okay. 6 o'clock be okay, sir. Yeah. Okay. I will be completing the first part in next 10 minutes. Okay. I will be completing my first part in next 10 minutes. Now next topic is reconcile with cash and credit ledger balance. जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं और जब जीएसटी ऑडिट आता है तो हम लोग कैश लेजर क्रेडिट लेजर जो जीएसटीएन पोर्टल में है उसको देखते हैं। तो हम आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकंसाइल करें विद द कैश और क्रेडिट लेजर एट जीएसटीएन पोर्टल कि वहां पर क्या बैलेंस है और हमारे बुक्स में क्या दिख रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आइडियली दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो उसको डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके टाइमली रेक्टिफाई करें और उसको बुक्स में रिकॉर्ड करें। उसको आपका आइडियली आपका कैश लेजर बैलेंस इन जीएसटीएन पोर्टल, क्रेडिट लेजर बैलेंस इन जीएसटीएन पोर्टल शुड मैच। आइडियली आपको मैच होना चाहिए, लेकिन कई केस सर्कमस्टेंसेस में मैच नहीं होगा। यू हैव टू लिस्ट आउट द रीजन, जस्टिफाइड रीजन कि क्यों किस कारण से वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए आप उसको रिकंसाइल करें, कैश लेजर क्रेडिट लेजर बैलेंस को वहां पर दिखाएं।
एक रीजन जैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो सामने वाली पार्टी ने जीएसटी 1 रिटर्न फाइल नहीं किया, ताकि 2B में आपके नहीं दिख रहा है, तो करंट मंथ्स में आपने अवेल नहीं किया, तो आईटीसी का जो बैलेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा दिख रहा होगा, और आईटीसी लेजर पोर्टल में जो है वो कम दिख रहा होगा, क्योंकि आपने आने वाले मंथ में जब वो रिटर्न पार्टियों से फॉलो अप करेंगे और रिटर्न फाइल करवाएंगे, तब उसका आईटीसी आप लेंगे। तो उस केसेस में आपने लिस्ट आउट कीजिए कौन कौन से केसेस में आपने इस तरीके से ट्रांजेक्शन 2 ईयर में सेग्रीगेट किया था, और उसको रिकनसाइल करके रखे, ताकि कभी भी फ्यूचर में जब कोई लिटिगेशन आएगा या टैक्स ऑडिट होगी या डिपार्टमेंटल ऑडिट होगी, तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे कोई भी केसेस है जहां पर आप इस टाइप के केसेस की कैश क्रेडिट लेजर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीजन नोट आउट कीजिए। एक 36(4) में ये बहुत ज्यादा इश्यू आएगा, तो आप इसको केयरफुली नोट डाउन कर लीजिए। Also review GST TDS receivable if any record as current assets. अब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिस्कस कर रहा था कि जीएसटी टीडीएस जो प्रोविजन है वो करंटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पीएसयूज में लागू होते हैं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू या गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग्स जो भी पेमेंट करती है अपने वेंडर्स को, जिससे उनका 2.5 लाख से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जीएसटी टीडीएस काटते हैं 2% की रेट से, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो 2% आईजीएसटी। तो इस सब केसेस में जो भी वो क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन पे वो टीडीएस काटते हैं, तो वो आपके पोर्टल में उस मंथ में रिफ्लेक्ट होता है, उसका उसका बेनिफिट आपको लेना रहता है, क्योंकि मार्च महीने में जो काम पेमेंट आपको मिली होगी उसका टीडीएस वो नेक्स्ट मंथ आपको अपलोड करेंगे। तो एज इनकम टैक्स टीडीएस यू हैव टू शो इट इन अ करंट एसेट्स। तो जीएसटी टीडीएस को भी आपको करंट एसेट्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, रिफ्लेक्ट करना है, ताकि आप उसको मिस न करें और अपने बुक्स में भी प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग हो पाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रिव्यू जीएसटी आइडेंटिफाई जस्टिफाई रीजन फॉर नॉन रिकंसाइल एंड प्रिजर्व इन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी और ऑडिट। तो इसमें कैश और जो भी डिफरेंसेस आते हैं जीएसटी टीडीएस में या फिर कैश क्रेडिट लेजर में, उसको लिस्ट आउट कीजिए, उसका रीजन को जस्टिफाई करके नोट डाउन कीजिए, ताकि कभी भी कोई स्क्रूटनी आएगी तो कि आज की डेट में आप प्रॉपरली उसको रीजनेबल ग्राउंड्स पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है जब 2 साल बाद इसकी स्क्रूटनी हो या ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट हो, आपको उस टाइम वो रीजन जस्ट नहीं मिल पाए। तो इसलिए आपको अभी अभी बेटर है, ये राइट टाइम है कि आप इस समय का यूज करें और टाइमली इसको रेक्टिफाई करें। So this is all about our first part. This is the part फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, और टाइमली आपके एक्शन आपको लेना है, ताकि आपको लायबिलिटी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना हो, रिवर्सल टाइम से ले, आईटीसी आपको कोई छूट ना जाए। आईटीसी अगर गलत अवेल्ड कर लिया है तो उसको कैपिटलाइज करके या फिर खर्चे के रूप में बुक करके आप इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट ले लें। तो ये ओवरऑल हम basically these are the transactions which are impacting your financial statement. So you have to rectify all these transactions. Now this is done away. We have done away with our first topic, that is how GST transaction impacting financial statement, previous financial year financial statement, that is financial 2021. Now let's relax a minute. I will be sharing one news with all of you, that we are GST Samadhan and we are Octotex, and just like to communicate with you what are the services we provide. Thereafter, we will be going through the notifications. Basically, at GST Samadhan, क्योंकि डे टू डे नोटिफिकेशंस जीएसटी डिपार्टमेंट रेगुलरली इश्यू करता है और डे टू डे जजमेंट्स आते हैं और रियल टाइम बेसिस में लॉ अपडेट होता है, तो इट इज नॉट वेरी फ्रूटफुल कि हम फिजिकल बुक्स के थ्रू गो थ्रू करें। So we have made a digital library that you can see. Before GST Samadhan, we have lots of books for act, rule, notification, advance ruling, high court judgment, notification day to day, और वो भी डे टू डे अपडेट होती है। तो वो बुक्स आपकी फिजिकल बुक्स यहाँ पर काम नहीं आएगी, तो उसको डन अवे करने के लिए हमने इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया है विद अ कस्टमाइज एंड सर्च फीचर। आप उसको रिव्यू करें। So this is the website for that, gstsamadhan.com. You can review. Right now we are going with a lockdown offer also, that is 40% discount on any subscription you apply for, and the coupon code for the same is lockdown40. So I request all the participants who are the practitioners, GST practitioners, that this will be useful for your academic needs on GST. So if any academic, you can go through the portal. You will like, definitely I hope you like the portal, and it's covered with a customized and a very simple user interface with an advanced search feature that you can search with a keyword also. So you can a keyword, just notifications hai, almost 1000 notifications are there. You have to filter the notification for composition scheme.
say only 30 to 40 notifications are composition scheme. You just have to type the composition, the keyword search, and you will be filtered with a notification. Out of the 1000 notifications, 30 notifications for composition only. Like with anything you can filter, like apart from high court judgments, advanced rulings, e-waybill notifications, circulars, orders, and all. Apart from that, we have a group of persons who contribute articles, very useful articles. We also aggregate news from various verified sources, media channels, so you can be helpful. So I request all the parties to please go through the channel, and if required, you can avail a demo also of that product. So I request team Optotec also to introduce about that product, so that we will continue thereafter with GST notification. Yeah. Thank you, sir. So before going ahead with the part 2 of the webinar, so I'd just like to take 5 minutes of your time, because even this is again important for, even the GST, your overall GST practice, as well as related to the topic today also. So like sir said, knowledge sharing is very, very important as tax professionals for all of us. So Optotax is a knowledge sharing and technology platform which is trusted by more than 50,000 tax professionals across the country for their 1 million plus clients. Now in Optotax, all the tax professionals, we gather and we share knowledge, and for sharing knowledge, we send daily updates, newsletters, and all the weekly updates. And we also organize these kind of webinars with the best faculties across the country. And when it comes to GST compliance, we make it very simple by, we have the GST, we have a GST platform, gst.optotax.com. So it has become India's #1 GST software, thanks to your all the tax professionals' love and support. So if you have not yet started using Optotax for your GST practice, please start using it because it's very, very simple, very useful for even closing your financial year transactions also. I have given the link for signing up. You can also go sign up over there. And also when it comes to what all features that are there that will help you in GST compliance, there are many features on Optotax which will help you. So, for example, one client of yours called just suddenly one day. He called and he said, "I want the GSTR 2A for 2020-21." So what do you do generally? You go to the portal, and then one by one, each month you download GSTR 2A. Each month it will take 20 minutes, right? We all know that. And then you have to compile all that into another Excel sheet. So instead of doing all that, you can just download the entire GSTR 2A for an entire year in just one click within 2 minutes. In Optotax, just within 2 minutes, you can download the entire year 2A. So that will be very, very helpful for your GST compliance. So apart from that, these are the things which differentiate Optotax from any other thing. So we have a live dashboard where you can see the return status of all your clients. So on the due date, on whatever due dates come, so you'll come to know which client have filed returns, which client have not filed returns. And then in just one click, you can download the report, download acknowledgements of the entire year of GSTR 1 or GSTR 3B. So one by one, you needn't go and download it. Just one click, within 2-3 minutes, you can download the entire year return acknowledgements. And then this is very important, being matching with your books again, GSTR 2A with purchase reconciliation. So big headache for all the tax professionals, but we have simplified that for you. So just 5-10 minutes, you just upload your purchase details, and you can download the reconciliation reports within minutes. And in case yours is a big office with a lot of clients, you can delegate your tasks to your employees also, to your articles or to your employees, so that it will be easy and you'll be able to manage your you can delegate and manage work properly also. And apart from that, this is very important for even related to today's topic. All these reports will be very helpful for you in finalizing all the financial statements of your clients. Reconciliation reports are there, 1 versus 3B, 2A versus 3B. And then like I told you, 2A versus purchase reconciliations is also there. You have summary reports for entire year, GSTR 1, GSTR 2A for entire year, GSTR 3B for entire year, you can download. Even the cash and ITC ledger you can download for entire year. Again, these party and rate-wise reports will help you on reconciliation.
which party has not uploaded 2A. You can easily find out from the party-wise 2A reports. So this is how it makes, we help in making the GST compliance easy for all the tax professionals. And the best part is that it is exclusively free for all tax professionals. So we want to help and empower all the tax professionals throughout the country. So it is it is exclusively free for all tax professionals. So today itself you can start using OptoTax. You can just click on the link that I've given in the chat as well, and you can just sign up and start using OptoTax. So all you need is Google Chrome, gst.optotax.com, and then you can start using it. You can sign up for free and you can start using it. So any doubts or any queries you have, you can reach out to us anytime. So these are our contact details. So I'll just hold here for a few seconds so that you can note down the contact numbers also. So any queries with respect to OptoTax you can ask, and all your other queries with respect to the webinar topic will be addressed in the Q&A session later on. So please don't worry, your queries will be answered definitely. So if there are any other queries, you can ask. I'll reply to that. So sir, I think you can go ahead with your presentations. Okay. Thank you. So we are there as a OptoTax, GST Samadhan, and the GST Mitra is there to resolve all your practicing needs. GST Mitra Praveenji is putting every effort to update you with the daily videos of that. Go through that. OptoTax is helping you for the compliance part, and it's free. Even I have used that for GST at 2A download, yearly download. It works in a 3 to 4 seconds only. In other software, paid software I use, it takes 4 to 5 minutes or 10 minutes time, but it is fast. So that have here, and GST Samadhan, we are academic library. So this all are adding value to your practice. It gives you confidence, and it basically serve your purpose as a GST practitioner. So that's and best of part of all these are here in the same platform, sharing knowledge with you and sharing guidance. How we can practice, how better we can learn. All other platforms are basically for GST practitioners who can use day-to-day practice. Okay. So moving forward to our presentation, I just also want to share a dashboard of our also GST Samadhan software. This is the dashboard. You can review. You can go through all the GST content in single window. You can identify any content you can think about in GST. You can go to a single window, and with the advanced search feature, you can customize every content. We also display in our dashboard only trending news aggregated from various verified sources. So gstsamadhan.com is a website. You can go through all this. So now we are going through our presentation. That is in continuation. We are going through the presentation on notifications. Before which I request Praveen ji. सर प्रवीण जी, कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके दिमाग में या कुछ चीजें छूट गई हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कन्वे कर दें ताकि फिर हम नोटिफिकेशन पार्ट में जाएंगे. प्लीज सर. प्रवीण जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. यस नाउ इट्स ओके. तो जहां तक जो भी डिस्कशन अभी तक हुआ, वट एवर द डिस्कशन गोइंग ऑन, वेरी वेरी good deliberation by your side, Vikas sir, and you have touched upon each and every point regarding the two-way reconciliation, the accounting standard part, each and every transaction relating to the reversal, ITC, e-waybill touching, e-invoicing, और जहाँ तक बाकी चीजें जो जितनी भी चलेंगी वो प्रैक्टिकल और केस टू केस बेसिस पे ही चला करती हैं. It depend upon case to case basis. It depend upon the practical circumstances of the case and particular thing. अगर किसी भी members, participants की whatever the query may be, we resolve truly about and about that. May I know about the team of the OptoTax to discuss about the second part, or can we take about the discussion or the question and answer part? प्रवीण जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर यूजर के बेनिफिट के लिए. एट लास्ट बेसिकली जब ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया तो मेरा एक थॉट था कि जैसे कि जीएसटी ऑडिट जो कंपलसरी ऑडिट है सीए के दौरान,
वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि वी आर टू डन अवे विद दिस, द होल लायबिलिटी हैज बीन शिफ्टेड टू टैक्स पेयर ओनली, कि सेल्फ सर्टिफाई आपको करना है, और कोई लायबिलिटी अराइज होती है अगर डिपार्टमेंट ऑडिट के टाइम में वो अराइज होती है तो ह्यूज इंटरेस्ट लॉ कॉस्ट कैन बी देयर, यू कैन टच अपॉन इट. That's why we are here to deliberate that timely action is required to reconcile and rectify any mistakes you have done. Please, sir. That yes, of course, whenever any notice will come, whenever any summon will come, it's not a very easy task to ignore it. Whatever the timeline is mentioned in the notice, whatever the timeline and who has to appear in that particular summon, very very crucial at that time. And whosoever is appearing, make sure कि आपने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से किया है. You have maintained each and every reconciliation about your 2A, your ITC, your each and every evidence part. So whenever departmental audit will come, or whenever any audit will come, it's our duty, it's our responsibility कि whatever the reconciliation I have and whatever the reconciliation that we prepare, it's a very truthful circumstances. It's very good to compile. हमारे सामने ऑप्टो टैक्स के फीचर्स हैं. इट्स वेरी गुड टू रिकंसाइल इट. हमारे सामने जीएसटी समाधान है जो एक बिल्कुल सर्च बेसिस पे we have particularly know about the what type of the what are the notification circular applying on our notice or summon. It's a very good to think and very good to reconcile your each and every part regarding from very particular from the financial year 17-18, every financial year part, the closing and opening part, and your eligibility and your depending upon everything in cover in your notice. Each and every point in your notice must be taken care of. Point wise reply must be done. And also if any tax to be paid, if any about the tax to be paid, then please mention about this so that tax is to be paid, and praying for any interest or penalty waiver also in your reply. Over to Vikas, sir. Okay, sir. Thank you. So we are going ahead with the notifications provision, because all we are suffering from a pandemic, and all the trade and industry and the GST practitioners and business houses are requesting the government to come out with a COVID relief for the compliance part. So government on 1st May taken all the measures to relax the compliance provisions which is applicable with respect to GST. So they have issued around seven notifications, specific seven notifications in central tax, which will be going to relieve the trade and commerce with some slightly, I can say. So we will be discussing all the provision for the relaxation granted by government to businessmen, and what are how they can avail that benefit. What are the timeline in which the benefit has to be availed? If that timeline line has been missed, you are hardly eligible for that relaxation granted by the government. So we have to be very careful with what are the relaxation provision, what are the deadlines to it, and how we can use that provisions for the benefit of our business, our GST compliance. So starting from notification 8 to notification 14 oblique 2021, central tax notifications are there, issued on 1st May 2021. Let's discuss one by one. We will be summarizing how they will be impacting the transaction, how due date is there, how relaxation in late fees is there, how relaxation in interest is there. So we will be discussing after that. So this is a slide basically covering what are the relaxation. So briefly we will discuss what are the notification issued. First, notification 8 of the 2020-21 talks about lowering the interest rate for tax period of March to April. Okay, March or April, when most part of the India is under lockdown, and it is very difficult for the business and the practitioner to comply with the GST monthly returns. So यहाँ पर compliance तो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया कि मार्च और अप्रैल महीने में जो लायबिलिटी आपकी आ रही है, वहां पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट आप क्या बोलते हैं रिलैक्स किया कि कहां से कहां तक के 0% इंटरेस्ट रहेगा, कितने से कितने टाइम तक के 9% इंटरेस्ट रहेगा, और उसके बियॉन्ड 18% होगा.
जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट डे ऑफ डिले से 18% पे एप्लीकेबल होता था, तो गवर्नमेंट ने उन प्रोविजंस को रिलैक्स किया थ्रू नोटिफिकेशन 8/2021. नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज 9/2021 dated 1st May 2021, that is waiver of late fees. तो कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने लेट फीस को वेव किया, जो अपन मालूम है कि जीएसटीआर 3B में आप डिले फाइल करते हैं तो इन द केस ऑफ यू हैव अ ट्रांजेक्शन तो 50 रुपीज पर डे की लेट फीस आती है, और जहां नील रेट है तो नील रिटर्न है तो 20 रुपए पर डे की आपकी लेट फीस आती है। तो उसको गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्स किया फॉर द पीरियड ऑफ मार्च अप्रैल एंड क्वार्टर एंडिंग मार्च ऑल्सो फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स ऑल्सो कंपोजिशन स्कीम। उसके अलावा 2021 जीएसटीआर 4 को भी उन्होंने रिलैक्स किया। उसके अलावा सेंट्रल टैक्स का जो जीएसटीआर 4 आपका जो हो गया आपको कंपोजिशन डीलर के लिए है। उसके अलावा 11/2021 में नोटिफिकेशन में उन्होंने जॉब वर्क का जो फॉर्म रहता है जहां पर हम लोग कोई गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हैं उसका डिस्क्लोजर देते हैं ITC 04, उसको कंप्लायंस करने के लिए भी उन्होंने टाइम दिया। 12/2021 नोटिफिकेशन में वहां पर उन्होंने एक्सटेंड ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जीएसटीआर 1 की। I just want to mention carefully here that in the case GSTR 3B की कोई भी ड्यू डेट को एक्सटेंशन नहीं किया गया है, लेकिन GSTR 1 की डेट को एक्सटेंशन किया गया है। तो वी विल डिस्कस डिटेल कि क्या से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो GSTR 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है और GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, बस वेवर ऑफ लेट फीस इज देयर ओनली। तो यहाँ पर 12/2021 से उन्होंने GSTR 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। उसके अलावा 13/2021 नोटिफिकेशन से उन्होंने रिलैक्सेशन इन रूल 36(4) दिया है। 36(4) का जो रूल है जो बोलता है कि जो भी आप ITC लेंगे जो आपके पोर्टल में GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस 5% जो अभी चल रहा है रेट, अभी जो नोटिफिकेशन जो एक्टिव है अभी ये 5% आप मैक्सिमम ले सकते हैं सब्जेक्ट टू ओवरऑल ITC एलिजिबल टू यू ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू हैव। तो ये इज अ प्रोविजन 36(4) के कंप्लायंस में, जो कि आपको अप्रैल महीने में हम देखेंगे या मार्च के महीने में हम देखेंगे। अप्रैल महीने में हो सकता है कि आप रिटर्न टाइम से फाइल ना कर पाए तो सामने वाले को इनपुट ना मिले, सिमिलरली जिससे आपने माल परचेज किया या सर्विसेज रिसीव की है वो रिटर्न फाइल ना करे, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल का आपको कैश लायबिलिटी राइज हो सकती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अप्रैल और मई के पीरियड को क्यूमुलेटिवली 36(4) कंप्लायंस करने के लिए किया गया है। तो उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। और लास्ट नोटिफिकेशन है 14/2021 जहां पर वेरियस अदर रिलैक्सेशन अपार्ट फ्रॉम जो ऊपर जो 8 से लेकर 13 तक की जो रिलैक्सेशन स्पेसिफिक रिलैक्सेशन है उसके अलावा जो कवर नहीं होते वो 14 में रिलैक्सेशन कवर किया गया है। So these are the basically the major notification due to COVID relief granted to GST registered persons. Now moving forward one by one. First, we will be discussing on waiver of late fees. तो कौन कौन से केसेस में लेट फीस को वेव किया गया है और कब तक ये वेव किया गया है उसको हम डिस्कस करते हैं। We have two periods in which late fees has been waived. For the March period, you can see heading March 2021 and there's April 2021. And there's a column for return of form, किस फॉर्म के लिए रिलैक्सेशन किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जीएसटीआर 1 में देखेंगे जनरली तो अभी तक जीएसटीआर 1 में हमें लेट फीस नहीं लगी है क्योंकि गवर्नमेंट तो रेगुलरली उसको एग्जाम करती जाती है या फिर जीएसटीआर 1 की लेट फीस को वे ऑफ करती जाती है। तो लेकिन अभी इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है और इसका कोई नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है कि इसका लेट फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन अभी तक के हमको जीएसटीआर 1 में कोई भी लेट फीस नहीं लगती, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको रिलैक्स करती जाती है। तो जीएसटीआर 1 में मार्च तक में कोई इसमें एप्लीकेबल कोई नोटिफिकेशन में कुछ भी इसमें प्रोविजन नहीं है, और अप्रैल में जो आइडियली आपकी जो ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 1 की 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो मार्च के अप्रैल की आपकी होगी 11th में, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया उसको एक्सटेंड कर दिया 15 डेज से। तो 11/5 को आपको ड्यू डेट होना चाहिए था, उसको 26/5/2021 कर दिया, 15 डेज का एक्सटेंशन दे दिया। उसके अलावा IFF जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी गई है, जो न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग स्कीम विच इज एप्लीकेबल फॉर SEC having turnover in the previous financial year less than 5 crore। तो QRMP की स्कीम का जो बेनिफिट ले रहे हैं, मार्च महीने में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अप्रैल महीने में क्या रिलैक्सेशन है 28/5/2021। हाउ इट वर्क्स, बेसिकली QRMP स्कीम में क्या होता है कि हमको ऑप्शन दिया गया है कि जस्ट लाइक जीएसटीआर 1 IFF इज देयर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जहां पर हम B2B ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जांपल फॉर अप्रैल मंथ इट इज 13 मई 2021,
तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी 15 डेज का रिलैक्सेशन दिया, वो 13/5 को 28/5 तक के एक्सटेंड कर दिया। तो इनवॉइस फॉर्निशिंग फैसिलिटी का भी आप बेनिफिट 28/5 तक के उसको फाइल कर सकते हैं, ताकि जो आपके रिसीवर्स हैं, जो सर्विस रिसीवर्स हैं, गुड्स रिसीवर्स हैं, उनको टाइम से आईटीसी का बेनिफिट मिल पाए। आगे अब जीएसटीआर 3B, जहां पर हमको लेट फीस लगती है, जहां पर अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो 50 रुपीज पर डे, अगर नील रिटर्न है तो 20 रुपीज पर डे हमको लेट फीस लगती है। तो क्या क्या वेवर यहाँ पर दिया गया और केयरफुली जो नीचे में नोट मेंशन किया गया तो देखेंगे आप कि जीएसटीआर 3B ड्यू डेट नॉट एक्सटेंडेड। तो ड्यू डेट जो है वो एज इट इज अपनी जगह पे है, ओनली वेवर फॉर लिमिटेड पीरियड इज बीइंग ग्रांटेड। तो वेवर ऑफ वो भी वेवर जब भी आपको मिलेगा जब वो टाइम लिमिट और डेडलाइन उन्होंने दिया है, प्रिस्क्राइब किया है, उस टाइम तक के आप वो रिटर्न फाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड कैटेगरी आप देखेंगे कि जीएसटीआर 3B ऐसे एसएससी का जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, मंथली रिटर्न वो फाइल करते हैं। जो उनकी तो उस केसेस में ये जो टाइम लिमिट जो रहती है जनरली वो है आपकी 20 तारीख 20। तो इस केसेस में मार्च की जो ड्यू डेट थी आपकी 20 अप्रैल 2021 थी, जिसको गवर्नमेंट ने 15 डेज का एक्सटेंशन कर दिया। सो दे हैव मेड इट 5/5/2021 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। नाउ मूविंग फॉर अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में क्या किया उन्होंने कि अप्रैल मंथ में जो आपकी जो ड्यू डेट थी वो आपकी थी 20 मई। तो उसको भी 20 मई की जो डेट थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, सॉरी 20 मई की जो डेट थी उसको भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 15 डेज से। तो इट कम्स टू 4/6/2021। तो 15 दिन का एक्सटेंशन यहाँ पर भी मिल गया। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटीआर 3B टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ और मंथली। आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, आप क्यूआरएमपी स्कीम नहीं अवेल किए, नॉर्मली मंथली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केसेस में भी आपको रिलैक्सेशन किया गया है। तो मार्च का रिटर्न जो आपको 20 अप्रैल तक के फाइल करना था उसको भी उन्होंने 3 से एक्सटेंड कर दिया। तो 30 डेज का एक्सटेंशन इज देयर। तो 20/5/2021 तक के वो उसको डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है विदाउट एनी लेट फीस। तो मतलब 20/5 तक के अगर आप उस रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। और फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट थी वो थी आपकी 20 मई। तो वहां पर भी 30 डेज का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उसको वहां पर टाइम लिमिट को एक्सटेंड करते हुए उसको 19/6/2021 तक की आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, आपको लेट फीस नहीं लगेगी। आगे आते हैं, अब वो बात करते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग स्कीम। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, आपको ये लिस्ट आप देखना पड़ेगा। कैटेगरी ए स्टेट्स, कैटेगरी बी स्टेट्स। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ कैटेगरी ए स्टेट्स में आता है। तो 2 लिस्ट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की थी। आप अपने पोर्टल में जाएंगे, आपको वहां से लिस्ट में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस लिस्ट में आप फॉलो करते हैं। तो कैटेगरी ए स्टेट्स एंड कैटेगरी बी स्टेट्स जो है वो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए है। क्यूआरएमपी स्कीम जो जीएसटीआर 3B का जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च, उसकी जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट थी क्या थी, एनीवन अवेयर? वो ड्यू डेट थी 25 अप्रैल 2021। तो 25 अप्रैल 2021 की वो ड्यू डेट थी। अगर आप सॉरी जीएसटीआर 3B की जब ड्यू डेट थी तो वो आपको 20 तारीख थी, 20 तारीख की ही वो ड्यू डेट उसमें दी गई थी। लेकिन सरकार ने उसको क्यूआरएमपी के लिए क्या किया था, 22 तारीख क्यूआरएमपी जो कैटेगरी स्टेट्स है वो 22 तारीख थी। तो उस केसेस में गवर्नमेंट ने 30 डेज का एक्सटेंशन देके 22/5/2021 कर दिया। उसके अलावा सेकेंड क्यूआरएमपी स्कीम जो कैटेगरी बी स्टेट्स के लिए है, मार्च की जो ड्यू डेट थी वो थी 24 मई 2021। मार्च की जो ड्यू डेट थी 24 अप्रैल 2021, उसको रिलैक्स कर दिया 24 मई 2021 तक, 30 डेज का एक्सटेंशन। तो 30 दिन बाद भी आप उसको फाइल करेंगे ड्यू डेट से, नॉर्मल ड्यू डेट से, तो भी आपको लेट फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन अप्रैल महीने में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो इस केसेस में क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग स्कीम में मार्च के महीने में ही दिया गया है, क्योंकि जीएसटीआर 3B जो फाइलिंग होती है उसमें वो मार्च के महीने में ही होती है, क्योंकि इसे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जहां पर मंथली आप बस चालान पेमेंट करते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करते हैं। और लास्ट आईटीसी 04 जो इंटीमेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क है, उसकी भी डेट को 30 दिन से एक्सटेंड की गई है। तो वो 30 अप्रैल तक जो आपको करना था वो 31 मई 2021 तक कर दिया। जनवरी फरवरी मार्च जो अप्रैल में मार्च 2021 की आपको जो आईटीसी 04 का इंटीमेशन देना था जॉब वर्क का, उसको जो ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, उसको गवर्नमेंट ने 1 मंथ से एक्सटेंड कर दिया और मेड इट 31/5/2021। तो इसके यहाँ तक कि अगर आप इसको फाइल करेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा।
So this is the late fees waiver which has been granted by the government. GSTR 3B की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि why they have not changed the GSTR 3B due dates? Because अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि GSTR 3B अप्रैल का एग्जांपल लेते हैं कि GSTR 3B 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है उसका, उसकी जो ड्यू डेट थी, तो नॉर्मल ड्यू डेट थी वो थी आपकी 20 मई 2021। अब उसको उसको उसमें उस एक्सटेंशन दिया गया 15 डेज का टू मेक इट 4/6। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस रिटर्न को 5/6/2021 को फाइल करता है, so he will be subject to late fees from the original due date। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने किया, या फिर 2-3 महीने बाद आप फाइल करते हैं, इस ब्रैकेट में फाइल नहीं करते, तो ओरिजिनल ड्यू डेट से यू हैव टू बी लायबल फॉर लेट फीस। तो ये एक जो नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये इम्पैक्ट आ रहा है कि जो भी ड्यू डेट के अंदर फाइल करेगा उसको ही ये लेट फीस वेवर की स्कीम एप्लीकेबल होगी। जो इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड उसको फाइल करेगा तो ओरिजिनल डेट से आपको लेट फीस लगेगी 20 रुपए और 50 रुपए, ऐसा केस में भी एप्लीकेबल टू यू। तो ये केयरफुल होगा कि जो भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं इस डेडलाइन के अंदर करें, तभी हम लेट फीस वेवर का बेनिफिट ले सकते हैं जो 1 मई के नोटिफिकेशन ने हमको दिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंटरेस्ट वेवर इज देयर आल्सो। तो नॉर्मली अगर हम लेट जो जो ड्यू डेट्स के बाद कोई भी टैक्स लायबिलिटी कैश में डिस्चार्ज करते हैं, सेक्शन 50 जो डिबेटेबल था, पहले ग्रॉस पे लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में उस पर क्लैरिफाई कर दिया कि यू हैव टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन कैश पोर्शन ऑफ योर लायबिलिटी। तो कैश में जो डिस्चार्ज करते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इस केसेस में कैश लायबिलिटी में जो इंटरेस्ट आपको पे करना रहता है 18% से आपको लायबिलिटी आती है। तो जो ड्यू डेट्स के बाद 18% से आपको इंटरेस्ट चालू हो जाता है। लेकिन कोविड-19 के चक्कर में जो भी लोग हैं वो टाइम से कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, एंड कंसीडरिंग द सेम गवर्नमेंट हैज रिलैक्स्ड दैट इंटरेस्ट प्रोविजन। गवर्नमेंट ने कोशिश की है यहाँ पर कि ज्यादा रिलैक्सेशन 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को दे, और बड़े व्यापारी जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं उन पे थोड़ा सा कम उनको बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को एट अ टाइम सेम टाइम गवर्नमेंट आल्सो नीड मनी टू कम आउट विद दिस पैंडेमिक। तो पैंडेमिक में गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, तो उन्होंने भी ज्यादा उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया है, बस दे बस जस्ट वांट टू फैसिलिटेट। और यहाँ उन्होंने प्रयास किया है कि जो छोटे व्यापारी है उनको ज्यादा बेनिफिट दे, और जो बड़े व्यापारी हैं वो अपना टाइम से कंप्लायंस कर रहे हैं कि दे आर कैपेबल इनफ कि वर्क फ्रॉम होम से भी उनके एम्प्लॉइज टाइमली कंप्लायंस कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है उनसे। तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इंटरेस्ट वेवर गिवन फॉर द पीरियड ऑफ मार्च 21। तो मार्च 21 में क्या इंटरेस्ट वेवर है, केयरफुली ये पीरियड मार्च 21 के लिए है। तो क्या हमने 4 कैटेगरी में इसको बांटा है, और इंटरेस्ट रेट 0%, 9% और 18% एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ऊपर है, और ये टर्नओवर कौन से साल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एंड हम रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं मार्च 21 का, बी केयरफुल कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज 1920। हम थोड़ा दिमाग में ये आता है कि जब हम अप्रैल में बैठे हैं तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है वो 20-21 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम मार्च 21 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर इज विल बी 1920। तो 1920 में अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो ये स्कीम में आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल, नो। सो जो 5 करोड़ से ऊपर वालों को 0% इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन छोटे व्यापारियों के लिए ही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, you will be liable to pay interest at the rate of 9% per annum provided you pay a cash liability up to 5/5/2021। तो मार्च की जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट थी 20 अप्रैल 2021। वहां से 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया। अगर 15 दिन तक की भी आप डिस्चार्ज करते हैं तो आपको 9% की दर से इंटरेस्ट रेट पे करना है ऑन कैश लायबिलिटी, जो कैश में आप डिस्चार्ज कर रहे हैं लायबिलिटी उसमें। उसके बाद अगर आप 5/5/21 के बाद से अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 18% विल बी एप्लीकेबल, एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे, दैट इज ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद से जो दिन चालू हो गया है वहां से आपको 18% की रेट से इंटरेस्ट डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो दिस इज द लायबिलिटी। तो 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है, इंटरेस्ट रेट को हाफ किया गया है, बट इंटरेस्ट यू विल बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट बिकॉज यू आर अ 5 करोड़ अबाउट टर्नओवर कैटेगरी पर्सन, and you are capable, government is सोचती कि they are capable enough to file the returns from their home, their employee can file their return, so they have given a partial relaxation in the case of interest to them. Now moving forward, the turnover category of the persons who are monthly filing their return but having turnover less than 5 crore the preceding financial year,
1920 स्पेसिफिकली। सर 1920 में अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है तो आप ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो जिसकी जो नॉर्मल ड्यू डेट थी मार्च की 20/4/2021 थी, गवर्नमेंट ने इसको 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया। एंड 15 दिन का रिलैक्सेशन में क्या है कि 5/5 तक की अगर आप इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं तो यू विल नॉट बी लायबल टू एनी इंटरेस्ट। तो अगर 5 करोड़ से टर्नओवर कम है आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और 15 दिन का भी डिले आप करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर ये पीरियड आप 5/5/21 से नेक्स्ट 15 डेज दैट इज 20/5 तक की अगर आप लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं तो यू विल बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% ऑन योर कैश लायबिलिटी। बी स्पेसिफिक, बी क्लियर विद दिस। जो आप अगर ये नेक्स्ट 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज 0% इंटरेस्ट, नेक्स्ट 15 days you will be liable to 9% at thereafter। उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो in my humble view you will be liable to 18% from the first day you have delay। पर 21 तारीख से आपको 18% की रेट से इंटरेस्ट लायबिलिटी चालू हो जाएगी, because this benefit is only when you pay the tax limit within that prescribed time limit or deadline। तो जो स्लैब की टाइम लिमिट दी गई है 0%, 9%, 18% और उसकी जो कट ऑफ डेट है उस दिन तक के ये बेनिफिट आप लेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आप यू विल बी लायबल टू इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट डे डिले यू मेड एंड ऑन द कैश लायबिलिटी पोर्शन। आपको 18% की रेट से इंटरेस्ट लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉर द थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी दैट इज QRMP स्कीम। इसमें कैटेगरी ए स्टेट, कैटेगरी बी स्टेट, इसमें 2 दिन का डिफरेंस जनरली रहता है। जो आपके केस में जो कैटेगरी स्टेट में आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप इसको समराइज करिए। तो कैटेगरी ए स्टेट को मैं डिस्कस करता हूँ। सिमिलरली 2 दिन का एक्सटेंशन तो कैटेगरी बी डेट में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मार्च के कंप्लायंस को कैटेगरी ए स्टेट को 22/4/2021 तक के उनके GSTR 3B फाइल करना था उन्हें। तो GSTR 3B 22/4 तक करना था तो 15 डेज रिलैक्सेशन इज देयर। तो पहले 15 दिन में 0% इंटरेस्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट 15 डेज 9% interest, and thereafter no benefit is there। After that, after 30 days you will be liable to interest at the rate of 18% of your on your cash liability। तो मार्च महीने की जो कैश लायबिलिटी है अगर आप 30 दिन का बेसिकली रिलैक्सेशन है, फर्स्ट 15 days no interest is there, next 15 days 9% interest is there, after 30 days no benefit is given to you, you will be subject to interest at the rate of 18% on your cash liability। Similarly 2 दिन का एक्सटेंशन है फॉर कैटेगरी बी स्टेट्स। So this is all about the interest waiver granted. Now moving on for the compulsion scheme, like I'm timely summing the all the notifications so that we can address all the queries raised by the participants। Now interest waiver is for compulsion dealer is also there। For example कि जो compulsion dealer को जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर एंडिंग का CMP 08 जो फाइल करना था उसकी जो ड्यू डेट थी वो 18/4/2021 थी, जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर के लिए, फोर्थ क्वार्टर दैट इज। तो उसकी 18/4 की डेट को यहाँ पर रिलैक्स करते हुए उन्होंने 15 डेज का एक्सटेंशन दिया। विद इन 15 अगर 3/5/2021 तक आप फाइल करते हैं तो 0% इंटरेस्ट रेट। अगर आप 3/5/2021 से नेक्स्ट 15 डेज में फाइल करते हैं तो यू विल बी लायबल टू 9% इंटरेस्ट रेट, एंड आफ्टर 30 डेज डिले यू विल बी सब्जेक्ट टू नॉर्मल इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 18%। तो दिस इज फॉर द कंपोजिशन डीलर। तो ज्यादा डिटेल में इसमें जाएंगे। 15 डेज के स्लैब्स में इन्होंने बांटा गया है। For the case of 5 crore above turnover, 0% not applicable from the first day, first 15 days delay, they will be liable to 15% interest rate, and after that 9% interest rate, and after that 18% interest rate is applicable। इसके अलावा GSTR जो कंपोजिशन डीलर है हमको एनुअल रिटर्न फाइल करना रहता है। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ड्यू डेट थी वो थी आपकी 20 अप्रैल 2021, उसको 1 महीने से एक्सटेंड किया गया। now they have made GSTR 4 ड्यू डेट, इसमें ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। बी केयरफुल, यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है, GSTR 3B में ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो GSTR 4 को ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31/5/2021। तो 31/5/2021 तक अगर आप फाइल करेंगे तो कोई भी आपको लेट फीस नहीं लगेगी। तो दिस इज फॉर कंपोजिशन डीलर। नाउ लास्ट this simple similar interest waiver is there for April also, so you can go through this with this slide। We will be sharing this slide through Optotech stream with you, all of you, that you can be benefited with this provision। तो अप्रैल में भी सेम है कि 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो पहले 5 करोड़ से अबाउट टर्नओवर वालों को फर्स्ट जो मंथ है, यहाँ पर जो अप्रैल का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा दैट इज 2021। यहाँ पर केयरफुल है कि अप्रैल का जो प्रीवियस फाइनेंशियल होगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल होगा वो 2021 होगा। तो उस केस में 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है आपका, तो उस केसेस में फर्स्ट 15 डेज नो इंटरेस्ट,
आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। फर्स्ट डे 15 डेज से आपको क्या होगा, 9% से इंटरेस्ट लगेगा एंड देयर आफ्टर 18% इंटरेस्ट रेट इज एप्लीकेबल। बिलो 5 करोड़ टर्नओवर, तो इस केसेस में बिलो 5 करोड़ और आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद भी QRN की स्कीम को आपने ऑप्ट नहीं किया, तो उस केसेस में जो आपकी ड्यू डेट थी अप्रैल महीने की वो थी 20/5/2021, वहां पर 15 डेज का एडिशन आपको पहले 15 डेज का डिले करते हैं तो 0% इंटरेस्ट रेट, next 15 days 9% interest rate, and after 30 days you will be liable to interest rate of 18% on your cash liability. Now QRMP scheme, QRMP स्कीम का आप अवेयर होंगे कि हमको चलान पेमेंट करना है मंथली में, कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है, नो 1 नो 3 भी, देयर इज ओनली 2 थिंग, एक तो IFF हमको फाइल करना है 13 तक, हाँ वो भी ऑप्शनल है, और सेकंड हमको चलान पेमेंट करना है जो ड्यू होता है, तो जितना आउटवर्ड लायबिलिटी माइनस ITC जो है हमारा उस महीने का, और डिफरेंस में जो आपको अमाउंट आता है कैश लायबिलिटी उसको हमको डिस्चार्ज करना रहता है, और उसकी जो ड्यू डेट रहती है वो हर महीने की अगले महीने की 25 तारीख। तो अप्रैल की जो ड्यू डेट थी वो 25/5/2021 थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया। नेक्स्ट 15 डेज नो इंटरेस्ट, next 15 days 9% interest, and after 30 days 18% normal interest rate will be applicable on them. So this is all the interest waiver given by government, late fees given by government, compulsion relaxation given by government. Apart from that, there's other provisions. उसके अलावा एक 13/2021 का important notification है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा all the participants please careful with this। ये नोटिफिकेशन 36(4) की कंप्लायंस को लेके आया है। ये नोटिफिकेशन 13/2021 है। जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि नॉर्मली आपको जो ITC का बेनिफिट मिलता है उस महीने में, जो आपको उस महीने के पीरियड में GST एक्ट हुए में जो दिख रहा है प्लस 5% सब्जेक्ट टू ओवरऑल ITC आपको अलाउड है, एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंप्लायंस करना है अप्रैल 21 और मई 21 दोनों पीरियड को क्यूमुलेट करके करना है। तो ये जो बेनिफिट आपको 36(4) का जो कंप्लायंस करना है वो दोनों महीने को लेके करना है। तो इसको लास्ट में मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में किया, तो रेस्ट्रिक्शन भी अफेक्ट क्यूमुलेटिवली अप्रैल में, तो ये जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा। तो एलिजिबल ITC विल बी, तो टू बी अप्रैल पीरियड का जो टू बी जो आपको मिलेगा 14 मई में, मई पीरियड का टू बी जो आपको मिलेगा 14 जून में, दोनों टू बी का जो टोटल होगा प्लस इंटू 105%, ये आपका एलिजिबल ITC सब्जेक्ट टू ओवरऑल ITC। ओवरऑल ITC से बियॉन्ड नहीं हो सकते, ये 105% के साथ भी, तो ओवरऑल ITC सब्जेक्ट टू ओवरऑल ITC, ये आप एलिजिबल ITC अंडर से 36(4) है, तो क्यूमुलेटिवली आपको देखना है। तो इन शॉर्ट यू कैन से यहाँ पर आप अपने जैसा आपकी जो सप्लायर्स हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी अवेल कर सकते हैं। मेरा यहाँ सजेशन रहेगा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे वेंडर्स का अच्छा है, अच्छे जो कंप्लायंट टैक्सपेयर से हम डील करते हैं, तो अप्रैल महीने में सिंपल सा आप क्या करिए, अप्रैल महीने के जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है पूरा ITC आप अवेल कर लीजिए, क्योंकि 36(4) मंथली आपको कंप्लायंस नहीं करना है। देन आफ्टर मई का जो टू बी दिखेगा आपको उस केस में, तो अप्रैल और मई को जोड़ के फिर 105%, तो इस केसेस में अप्रैल से आप कैश लायबिलिटी को बचा जा सकता है, प्रोवाइडेड यू कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ योर सप्लायर, कि वो कंप्लायंस किस तरीके से, कंप्लायंस प्रोफाइल कैसी है उनकी, कैसे वो फाइल करते हैं। तो अगर वो टाइमली फाइल कर देंगे, आप उनसे फॉलो अप करके नेक्स्ट मंथ तक की भी फाइल करवा लेंगे, तो उस केसेस में आप अप्रैल में जितने भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ ITC बनता है वो ले लीजिए, और जो मिसिंग है टू बी में उनसे फॉलो अप कीजिए, मई तक के फाइल करने के लिए उनको बोलिए, और मई में वो जब फाइल कर देंगे टोटल अप्रैल और मई का मिला के 105% उसका आपको ITC मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू ओवरऑल ITC एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो दिस आर ऑल द रिलैक्सेशन। एंड लास्ट नोटिफिकेशन जो है 14/2021, जहां पर और अदर रिलैक्सेशन दिया गया है अपार्ट फ्रॉम डिस्कस अर्लियर। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है, एक तो है आपका एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, जो लिमिटेशन पीरियड है कि कोई भी केसेस में जहां पर आप लिमिटेशन की बात की गई है, तो जिसकी ड्यू डेट आपकी अप्रैल 15 से लेके मई 30 तक के फॉल कर रही थी, तो उस केसेस में इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2021 तक के। तो कोई अपील है, हियरिंग है, जो ड्यू डेट इसमें फॉल कर रही थी, जिसकी ड्यू डेट यहाँ पर एंड हो रही थी, तो उस 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक की अगर वो एंड हो रही थी, तो उसको 31 मई तक के एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया गया है। 31 मई तक के आप उस प्रोविजन का बेनिफिट, उस टाइम लिमिट का बेनिफिट एक्सटेंड मान सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेम डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट को शो कॉस्ट लेन देना है या फिर कोई नोटिस देना है, उसके टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया, उसको जो एंड होती है अप्रैल 15 से 30 मई के बीच में, तो उसका रिलैक्सेशन 31 मई तक के दे दिया गया। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का जो वेरिफिकेशन होता है
उसके लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया था। रजिस्ट्रेशन का जो वेरिफिकेशन वो करना रहता है टाइम बाउंड तरीके से, और उसकी लास्ट डेट मई 1 मई से लेकर 31 मई तक ये फॉल करती है, तो वो दैट कैन बी कंप्लाइड आफ्टर दैट ऑल्सो अप टू जून 15। उसके अलावा अगर रिफंड क्लेम आपका है, नोटिस आपको मिली हुई है, और अगर आपको रिफंड क्लेम आपने ड्यू किया है, तो टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर during the 15 April to this, then time limit for issuance of order has been extended to later on. तो यहाँ पर अगर उसका ऑर्डर की डेट इस पीरियड में फॉल करती है, तो उस ऑर्डर को डिले कर सकते हैं लेटर ऑफ दिस 15 डे आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाई टू नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन और 31st में whichever is later. तो ये अदर रिलैक्सेशन अपार्ट फ्रॉम रेगुलर रिलैक्सेशन, regular interest waiver and late fees waiver, this has been granted by the government. This is all from my part. I have tried to sum up all the recent notifications with you, all the impact of financial statements of GST transaction with you, and now I'll request Praveen ji and the host for the event to take the queries of all the sessions that we can discuss accordingly. सर मैम कुछ क्वेरीज हैं, आप अगर वो लिस्ट आउट करके बोल दे तो प्रवीण जी और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँ। या sir, you can go ahead. ठीक है सर, प्रवीण जी क्वेरीज आप देखिए एक एक करके। जैसे ललित शाह जी ने पूछा है, इफ फर्म हैज 2 ब्रांचेस एंड HO एंड ओनली 1 ब्रांच इज रजिस्टर्ड, द टर्नओवर कैलकुलेशन विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच और टोटल टर्नओवर ऑफ द फर्म। प्रवीण जी, if the firm has 2 branches in head office and only 1 branch is registered, with the turnover calculation will be for that particular branch or total turnover of the firm. सर इस केस में मैं बताना चाहूंगा, और आगे जितनी भी क्वेरीज हैं मैं रीड करते हुए चल रहा था, एक आंसर आपको उन सब क्वेरीज को सॉल्व कर देगा, चाहे वो इनवॉइसिंग हो या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हो। एग्रीगेट टर्नओवर मींस व्हाटएवर, उसके अंदर सब चीज इंक्लूड है। अगर मैं एक लेमन तरीके से बताऊं, इट इंक्लूड्स द टैक्सेबल सप्लाई, इट इंक्लूड्स द एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। डबल AR रूलिंग आपको देखना पड़ेगा कर्नाटका का अनिल अग्रवाल के केस में, जहां पे डिविडेंड इज एक्सक्लूड्स, इंटरेस्ट इज एक्सक्लूड्स, डिटेल रूलिंग है फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट। नाउ आपका क्वेश्चन है, द एग्रीगेट टर्नओवर में किस ब्रांचेस लें, हेड ऑफिस लें, क्या लें? If you have one PAN, on the one single PAN, there are multiple registration or not any single registration. जहां जहां आपकी ब्रांचेस होंगी, जहां जहां आपकी हेड ऑफिस, फैक्ट्रीज, व्हाटएवर, एक पैन पे जितनी भी आपकी टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर काउंट होगी पैन इंडिया वाइज, एंड दैट कवर्स एंड एग्रीगेट टर्नओवर का वो पार्ट बनेगा। इवन इनवॉइसिंग के अंदर रिवर्स चार्ज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा रिवर्स चार्ज? एज अ रेसिपिएंट जो मैं पे करता हूं, फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑलवेज कवर होगा। सो एग्रीगेट टर्नओवर मींस द टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, excluding the reverse charge, excluding the GST part, and it should be calculated on a pan India wise. So hope ललित जी का ये आंसर होगा। क्योंकि इन शॉर्ट वी कैन से कि जो टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है वो पैन नंबर बेसिस देखना है, ना कि GSTN वाइज। So every time aggregate turnover से linked है, and aggregate turnover is only of a PAN number, not a particular GSTIN. एक क्वेश्चन कांतिलाल जी ने पूछा था, still and lockdown fifth and last issue of this expansion. Yes, today is the lockdown. The turnover exceeds 5 crores of rupees. There are no such extension as of now. So today is the due date for waiver of the late fee and the interest part. Interest is also there with the 9% rate. Right. Is right. it applicable, already applicable? After right. that, it will be applicable with 18%. 18%. एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि मैं रिटर्न फाइल कर दिया, लेट फीस का है, तो क्या मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूं? डेफिनेटली, अगर आपने कोई रिटर्न फाइल कर दिया है, गवर्नमेंट ने लेट नोटिफाई किया, कोई वेवर दिया, डेफिनेटली यू कैन क्लेम अ रिफंड ऑन द कैटेगरी की एक्सेस टैक्स पेड। एक्सेस टैक्स पेड की कैटेगरी में आप रिफंड के लिए अप्लाई करिए, एंड इट शुड बी देयर इन योर कैश लेजर। बिल्कुल नहीं सर, अगर मैंने लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया सर, उस केस में भी मैं कैसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। राइट राइट राइट।
और कोई क्वेश्चन सर देखिए लालित जी का Mr. Bimal ji ka question hai, is there any restriction on using the ITC? Recently, our client has started receiving notice from the GST department regarding the use of ITC of more than 90% in their returns and asked for the documentary support. So, again, the answer is your reconciliations part. Your 2A versus 3B versus books versus rule 36(4. ये आपको पूरी कैलकुलेशन अपनी करनी है एंड यू हैव टू प्रूव कि जो भी मैंने आईटीसी लिया है चाहे वो 100% ही क्यों ना हो, इट्स योर राइट। बिल्कुल, ये नोटिसेस कॉमनली थी हमारे एरिया में, इसमें 95% है, आपके एरिया में ज्यादा रिलैक्सेशन है, 90% के ज्यादा हार्श है उन लोग, 90% के ऊपर भी नोटिस इश्यू किए हैं। इसमें ये जस्टिफाई करूंगा कि जनरली जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है उनके पास स्टॉक होता है, जिसके कारण कभी भी उनको आईटीसी पेमेंट कैश लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव वन क्लाइंट दैट इज इन अ बैटरी बिजनेस, वो हमेशा एनी टाइम का जो उनका टर्नओवर का जो है 30% वो स्टॉक रखते हैं, तो वो स्टॉक फिजिकली अवेलेबल भी रहता है। तो इन दैट केस यू कैन शो अ प्रूफ ऑफ अ स्टॉक अवेलेबल विद यू, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यू कैन 100% यूटिलाइज द कैश लायबिलिटी आल्सो। मे बी इन द सर्विसेज पार्ट, अगर मेरा होटल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, चलो रेस्टोरेंट को हम साइड कर देते हैं, जो एक नॉर्मल एक टैक्सेबल पर्सन है जो आईटीसी भी क्लेम करता है। सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि मेरा 90% आईटीसी यूज होता है। So it's all together again a cross checking with your clients and cross checking with your books कि इतना मैंने आईटीसी किस हिसाब से लिया। जनरली ट्रेडिंग कम्युनिटी में ही ये पॉसिबल है कि इतना आपका आईटीसी हो। सर्विस इंडस्ट्री में हार्डली एवरेज हम देखेंगे 20 to 25% से ऊपर आईटीसी नहीं रहता, और 70 to 80% दे डिस्चार्ज लायबिलिटी थ्रू कैश लेजर ओनली। राइट। Whether information is kept confidential. Okay, it's okay. सुरेश जी का क्वेश्चन है सर, प्रवीण जी, जीएसटी ऑडिट एबॉलिश फॉर फाइनेंशियल 2021 और फाइनेंशियल 21-22 आल्सो। सर प्रवीण जी इसमें आंसर करना चाहेंगे पहले आप प्लीज। क्या क्वेश्चन है सर? सुरेश जी क्वेश्चन है, इज जीएसटी ऑडिट एबॉलिश्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल 21-22? सर ऑल टुगेदर इसकी हिस्ट्री में बताना चाहूंगा। यूनियन बजट 2018, यूनियन बजट 2019, यूनियन बजट 2020, यूनियन बजट 2020-21। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भी प्रपोजल आया हो वो 100% उसका नोटिफिकेशन आया हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, सेंटर ने पास किया हो, जब तक स्टेट पास नहीं करेगा तब तक वो नोटिफाई नहीं होगा। थर्ड थिंग, अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, आप हम मान के चलो 2021 का जीएसटी ऑडिट होगा, जरूर होगा। बिल्कुल सर, तो मेरा भी ये व्यू है कि तब तक स्टेट जीएसटी एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 year विल बी रिक्वायर्ड, एंड देयर आफ्टर ड्यू डेट के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अनलेस दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी और एनुअल रिटर्न, दे हैव टू बी कंप्लायंट। तो जीएसटी 9C के कंप्लायंस 2021 के लिए भी होगा। कैन आईटीसी अनअवेल्ड फ्रॉम अप्रैल 21 बी क्लेम्ड नाउ? यस, अप्रैल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की कोई आईटीसी आपकी छूट गई है, उसकी जो लेने की समय सीमा है वो नेक्स्ट 6 month तक की आप अवेल कर सकते हैं। तो यू कैन वेरी वेल टेक अवे दैट आईटीसी इन फॉर्म जीएसटी और 3B टिल सितंबर 2021 रिटर्न। प्रवीण जी और कोई क्वेश्चन देखेंगे? राजेश जी का क्वेश्चन देखिए सर, राजेश जी का, कैन आईटीसी बी क्लेम्ड अगेंस्ट एडवांसेस ऑफ सर्विसेज नॉट रिसीव्ड? आप दीजिए प्लीज, मैं बाकी क्वेश्चंस देख रहा हूँ। सर, कैन आईटीसी बी क्लेम्ड अगेंस्ट एडवांसेस ऑफ सर्विसेज एज सर्विसेज आर नॉट रिसीव्ड येट? सो इन माय व्यू इट कैन नॉट बी टेकन। Whether dividend income will be included, that we have discussed. What is GST rate for YouTube income? Very interesting question. You can go through our website GST Samadhan. You can find a GST rate finders there. You can find there. Obviously, it's a services. Yeah. What is the GST rate applicable? What is the rate applicable? Ideally, it is 18%. Why the ITC can be claimed as per 2A or 2B? Praveen ji. Sir,
It's altogether Rule 36(4) amendment in the past. अब आपको जो भी figuring out करना है, reconciliation बनाना है, it's all together from the 2B, which is the eligible ITC plus 5% as per the Rule 36(4). 2A के अंदर आपका जो ITC है दोस्तों, वो आपका एलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों आ रहा है, बट समहाउ पीछे अमेंडमेंट जो हुआ वो 2B के बारे में कहता है। CBIC का ट्वीट आया that also says about the 2B. The 2B plus 5% is your criteria to pick and taken in your 3B. तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। चंद्रकांत शाह जी का क्वेश्चन है, सर banks are also not taking our invoice part in filing their return, and while asking they just give a hard copy of GST invoice by bank and say you can claim now. ओके सर, इसमें मेरा जो व्यू है कि आपने शायद जीएसटी नंबर अपडेट नहीं किया होगा या फिर वो चीज बैंक वाले जो हैं वो अपडेट नहीं कर रहे होंगे, तो इस केसेस में आप वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लीजिए, कोशिश करिए कि उनसे कंप्लाई कर लें, और नहीं करते तो उस Sir, your voice is not coming. No, sir. Not coming, sir. So maybe you can rejoin. Sir, Vikas ji is telling you to go with the answer. So your voice is not coming. Any other question, ma'am? Yeah. Yeah, sir. On top on the chat there are a lot of questions. Okay. On the top. Yeah. Okay, The new please questions. explain in detail what are the GST rate for the YouTube income that Vikas sir already discussed about. Obviously, it's a services 18% GST rate would be there. Lalit ji, the question is, I forgot to pay the reverse charge on the transport for 2017-18. Can I give to pay now? Can I take the ITC? Still, 2017-18 is gone, and the period is lapsed for taking the ITC related to the section 9(4). So it's altogether a lapse of ITC, but you have to pay the GST on it. Sir Himanshu ji, so like in our 2B credit is rupees 100. In books, credit is 140. How much needs to be reversed as we have 100 plus 5% is 105. 140 in your books, take 140 and reverse the 35. Then net ITC would be the 105. So GST RC taken for the transport GTA to GT exemption category. Vehicle given for rent 40,000 every month. Vehicle giving trip basis, rent daily basis. Kindly advise all are acceptable, all are exempt if given one-to-one basis, B2B basis from the one GTA to another GTA. Is it export of services? Yes, it is export of services. YouTube income. What are the steps to be followed if a proprietary business covered under the GST to be taken by another individual? If there is any stock, then transfer of that stock with your tax invoice. If there is any ITC available, file ITC 02 for the transfer of ITC, and first taken the new GST registration, then transfer of ITC and the transfer of the stock. I think I have covered all the questions. But now HSN code is compulsory. Now Lalit ji, now the HSN code is compulsory for the turnover, aggregate turnover exceeds 5 crores of rupees in the preceding financial year. On the B2B and the B2C invoices, 6-digit HSN code is mandatory. For the turnover of up to rupees 5 crores of rupees, only the B2B invoices, the HSN code would be 4-digit. So 6-digit for the turnover exceeds 5 crores of rupees, and turnover up to 5 crore rupees, 4-digit HSN code would be there in your tax invoice and on your GSTR1. Can we claim GST on carry bag which is given to client free of cost on purchase of goods? Vikas ji, your voice is not coming.
कुछ और क्वेश्चन मेरे ऊपर साथ में आ गए हैं. Whether the sale of land to be shown in GST or 3B EVS, then in which table you can show as a non-GST supply in due to income LUT taken for 0% export of services. Whether the ये हो गया आपका GTA हो गया आपका कैटेगरी कवर, HSN कोड हो गया, in annual return ITC amount file wrong. What action is taken by the department? If there is excess ITC taken, then obviously it has to be reversed. You have reversal should be required along with the interest part. By which date we have to update Aadhaar authentication as asked by the GST portal. Still, for the existing taxpayer is not yet mandatory, is not yet started. It's a starting phase. आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी करो. It's altogether it's up to you, but it's not mandatory right now. By which date we have to update Aadhaar authentication? It's okay. It's clear now. So all question has been answered. Vikas ji, please try to. Okay, Vikas ji is coming. Sir, your voice is not coming. ये तो अच्छा हुआ कि ये वेबिनार आपने अच्छे तरीके से दिया, डेलिब्रेशन आपका अच्छे से हुआ. क्वेश्चंस पार्ट में थोड़ा वॉइस इज इशू now from your side. So any other question, participants? Still 130 participants are there. Any other question, please? Right now, various notification is published regarding the GST waiver of the late fee and the interest part. Any other question? Rule 36(4) is also been in the streamlined stage. Any other question, please? Team Optotex? Yes, sir. So if there is no other queries, I think we can wrap up the webinar, sir. Sure. So yeah, thank you so much, Vikas ji and Praveen ji for joining us. And also, I hope GST Mitra and Optotax and GST Samadhan will be very helpful for all tax professionals for their compliance, day-to-day compliance. So thank you so much for sharing your knowledge with us. So please can hopefully continue it later on for the other webinars also. And so thank you so much, sir. Thank you. And also everyone, please stay safe. Please keep your family and your friends and yourself very healthy. And yeah, please be mentally positive and please be healthy. Thank you.